Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. Now we will start revision of lesson number 4, geometry and patterns. Before starting our today's topic, first we will see what we had learned our last classes. So student, now all of you know very well what you had learned our last classes. So first we had learned about the plane figure. So which plane figures? Rectangle, square, triangle, circle and corner. This is corner, not oval. This is the plane figure. So look at here, rectangle. This is the rectangle. Rectangle have a 4 side and 4 corner. Rectangle have a 4 side and 4 corner. Then square. Square also have a same 4 side and 4 corner. But rectangle and square not are the equal, because in the rectangle opposite side are the equal. In the rectangle opposite side are the equal, but in the square all side are the equal. All side are the equal. This is the difference between the rectangle and square. Then next is the triangle. What is the triangle? Triangle have a 3 side and 3 corner. Triangle have a 3 side and 3 corner. So this is the triangle that have a 3 side and 3 corner. Okay. Then next is the circle. What is this? Circle. Circle have a only one side. Circle have a only one side, and that one side is the curve. One side is the curve. And circle not have a any corner. Circle not have a any corner. Then next is the oval. Same like that circle, oval also have a one curved side and circle not have a any corner. So this is the plane figures. Then after we had learned the face, edges and corner in the solid shape. So now first we will see faces. Flat and curved faces. The solid shape have a flat and curved faces. So which shapes have a plane or flat face, and which shapes have a curved face? So now look at here. Cube and cuboid. Cube and cuboid that have a both have a flat face. Cube and cuboid have a flat face. They not have a any curved face. देन फॉर एग्जाम्पल यूर बॉक्स. ओके, कोई बॉक्स है जिसमें कुछ आता है, गिफ्ट आता है, नहीं तो फिर कुछ हम खरीदते तो हमें बॉक्स मिलता है. तो वो जो बॉक्स है उसमें कोई कर्व रहता है क्या? नहीं. वो कैसा रहता है? एकदम क्या रहता है? स्ट्रेट रहता है, फ्लैट रहता है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड. देन नेक्स्ट इज दिस इज द स्पीयर. स्पीयर मीन्स एग्जाम्पल ऑफ बॉल. आपके पास बॉल होगा, ठीक है. तो बॉल हमारा होता है, वो कैसा रहता है? सर्कल रहता है. तो वो कैसे रहता है? ऐसे राउंड रहता है. मतलब उसका शेप आपको कैसे वो स्ट्रेट दिखता है क्या? नहीं, वो ऐसा राउंड रहता है. मतलब वो कौन से शेप का है? कर्व वाले शेप का है. देन नेक्स्ट इज द सिलेंडर एंड कोन. सिलेंडर और कोन मतलब सिलेंडर कोई बॉटल्स है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, ये है डीओ है, ठीक है. तो ये डीओ है और इसमें देखो क्या है, यहाँ पे दोनों साइड पे स्ट्रेट है और ये क्या है? कर्व है. मतलब ये सर्कल वाला है, कर्व है. और यहाँ पे देखो, यहाँ और यहाँ डाउन साइड में ये क्या है? प्लेन फेस है. प्लेन फेस है इसलिए यहाँ पे ऐसे रख रही, तो ये क्या हो रहा है? खड़ा हो रहा है. यहाँ से भी ऐसे खड़ा होता है. मतलब ये दोनों भी फेस कैसे है? फ्लैट फेस है. और ये जो बीच में है, अगर बीच में ऐसे रख दिया तो ये क्या हो रहा है? यहाँ से ऐसे मूव हो रहा है. मतलब ये कौन सा फेस है? कर्व वाला फेस है. देन कोन. कोन होता है जो आप आपके बर्थडे पार्टी पे आप लगाते हैं, कैप लगाते हैं, वो कोन है, ठीक है. तो वो कोन कैसा रहता है? और जो आप क्या खाते हो? आइसक्रीम खाते हो, उसमें भी कोन आइसक्रीम आता है. उसमें भी क्या होता है? जो जिसमें ऊपर आइसक्रीम लगा रहता है वो कैसा रहता है? फ्लैट रहता है. और नीचे से कैसा रहता है? कर्व रहता है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द व्हाट? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोन.
सिलेंडर एंड कोन हैव अ बोथ फ्लैट एंड कर्व फेसेस। जो सिलेंडर है और हमारा कोन है उसको क्या रहते हैं, फ्लैट भी रहते हैं और कर्व भी रहता है। दिस इज द स्पीयर। स्पीयर को क्या रहता है, ओनली कर्व फेस रहता है। इट नॉट हैव एनी स्ट्रेट फेस, उसको स्ट्रेट फेस नहीं होता है, क्योंकि अगर हम बॉल को एक जगह पे रख देंगे तो वो क्या होता है, मूव होता है। देन एजेस, स्ट्रेट एंड कर्व एजेस। जो हमारा क्यूब है और क्यूबाइड है उसको कैसे एजेस रहते हैं, उसको हमारे स्ट्रेट एजेस रहते हैं। एंड एजेस इज वेयर टू फेस मीट। एजेस किसको बोलते हैं, टू फेस जहाँ पे मिलते हैं उसको एजेस बोलते हैं। और क्यूब हैज़ अ स्ट्रेट एजेस, क्यूब को स्ट्रेट एजेस रहते हैं। और क्यूबाइड आल्सो हैव अ स्ट्रेट एजेस, क्यूबाइड को भी स्ट्रेट एजेस रहते हैं। देन दिस इज द सिलेंडर एंड कोन। सिलेंडर हैज़ अ कर्व एजेस। सिलेंडर को देखो यहाँ पे कर्व एजेस है, मतलब यहाँ पे सर्कल है तो ये कर्व एजेस है। और कोन आल्सो हैव अ कर्व एजेस, ये कोन को भी ये क्या है, कर्व एजेस है। सो दिस इज द एजेस। देन आफ्टर कॉर्नर, अ कॉर्नर इज द वेयर थ्री एजेस आर मीट। यहाँ पे देखो क्यूबाइड है, यहाँ पे 1, ये 2 और 3 यहाँ पे मिल रहा है तो उसको बोलते हैं कोन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, कॉर्नर फॉर्म, कोन नहीं सॉरी, कॉर्नर फॉर्म हो रहा है। तो जहाँ पे 3 एजेस मिलते हैं वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कॉर्नर फॉर्म होता है। ठीक है, कॉर्नर को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। और कॉर्नर इज़ वेयर द 3 एजेस मीट। 3 एज जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे कॉर्नर फॉर्म होता है। और क्यूब एंड क्यूबाइड हैव अ कॉर्नर, क्यूब और क्यूबाइड को कॉर्नर रहता है। डज हैव अ कॉर्नर, कोन हैव अ कॉर्नर, यस दिस इज द कोन, कोन को अपसाइड में क्या रहता है, कॉर्नर रहता है। देन स्पीयर, स्पीयर एंड सिलेंडर। स्पीयर एंड सिलेंडर दे बोथ नॉट हैव एनी कॉर्नर। ठीक है, स्पीयर को भी कोई कॉर्नर नहीं रहता है और सिलेंडर को भी कोई कॉर्नर नहीं रहता है। सो दिस इज द फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर इन द सॉलिड सेल। Then next is the property of solid cells. So which is the property of, look at here, this is the cube. Is cube is look like a square. ठीक है, क्यूब स्क्वायर के तरह दिखता है क्योंकि क्यूब के ऑल फेस आर इक्वल। जो हमारा क्यूब होता है उसके सभी फेस क्या रहते हैं, इक्वल रहती है। अ क्यूब हैज़ अ 6 फेसेस। क्यूब को कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस रहते हैं। देन हाउ मेनी एजेस, उसको 12 एजेस रहते हैं। फेस मतलब जो हमें सामना दिखता है, ये 1 2, एक बैक साइड और दोनों इस साइड और नीचे, ये 6 हो गए। और एजेस मतलब क्या होता है, जो हमारे 2 फेसेस जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं एजेस। तो वो कितने हैं, 12 है। और 8 कॉर्नर, जहाँ पे 3 एजेस मिलते हैं वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कॉर्नर फॉर्म होता है। सो लाइक डैट क्यूबाइड आल्सो। ठीक है, क्यूब और क्यूबाइड को सेम है, मतलब क्यूब को भी 6 फेसेस है, क्यूबाइड को भी 6 फेसेस है। क्यूब को 12 एजेस है, क्यूबाइड को भी 12 एजेस है। इसको 8 कॉर्नर है, इसको भी 8 कॉर्नर है। बट क्यूब एंड क्यूबाइड नॉट इक्वल बिकॉज क्यूबाइड इज इक्वल टू द रेक्टेंगल। क्यूबाइड किसके तरह दिखता है, रेक्टेंगल के तरह दिखता है, और क्यूब ये स्क्वायर के तरह दिखता है। तो स्क्वायर और क्यूबाइड, स्क्वायर एंड rectangle are not equal because in the rectangle opposite side are only equal. So like that क्यूबाइड में भी क्या होता है, जो अपोजिट साइड रहती है वो इक्वल रहती है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबाइड। देन सिलेंडर, सिलेंडर हैज़ अ 3 फेसेस। सिलेंडर को कितने फेसेस रहते हैं, 3 फेसेस रहते हैं। देयर आर द 2 प्लेन फेसेस, उसमें से 2 प्लेन है और 1 कर्व फेसेस है। हाउ मेनी एजेस डज हैव, उसको कितने एजेस है, 2 एजेस है, 2 कर्व एजेस है। देन कोन, अ कोन हैज़ अ प्लेन सरफेस, उसको क्या रहता है, 1 प्लेन सरफेस रहता है और 1 क्या रहता है, कर्व फेस रहता है। इट हैव अ 1 एजेस, उसको कितने, 1 कर्व एजेस, और इट हैज़ अ 1 कॉर्नर, और इसको कितने कॉर्नर है, 1 कॉर्नर है। कॉर्नर इज आल्सो नोन एज वर्टेक्स, हम कॉर्नर को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। दिस इज द लुक लाइक अ बॉल, ये किसके तरह दिखता है, बॉल के तरह दिखता है, इसको बोलते हैं हम स्पीयर। स्पीयर नॉट एजेस कॉर्नर, स्पीयर को एजेस भी नहीं है, कॉर्नर भी नहीं है। इसको 1 क्या है, सरफेस है, और 1 सरफेस कौन सा है, कर्व सरफेस है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड शेप।
Then next is the simple concept in geometry. First is the point, how to draw point and how to look at here. A small dot made with a sharp pencil give you a point. ठीक है, पॉइंट मतलब क्या होता है और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं. पॉइंट किससे ड्रॉ करते हैं हम? पॉइंट वी आर ड्रॉ बाय यूजिंग द पेंसिल. किससे निकालते हैं? शार्प पेंसिल से निकालते हैं. और हम पॉइंट को क्या करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं? हम पॉइंट को हम कैपिटल लेटर दे के उसको इंडिकेट करते हैं. और पॉइंट क्या शो करता है? डेफिनाइट पोजीशन ऑफ द लाइन. मतलब सपोज यहाँ पे लाइन है, ये देखो लाइन है, लाइन सेगमेंट है. यहाँ पे देखो दोनों लाइन सेगमेंट के एंड में 1 1 पॉइंट दिया है. मतलब वो क्या कर रहा है कि वो लाइन है उसकी डेफिनाइट पोजीशन शो करता है. अ पॉइंट शो डेफिनाइट पोजीशन. इट हैज़ नो लेंथ. उसको लेंथ नहीं रहती, ब्रीथ नहीं रहती और थिकनेस नहीं रहती. किसको? लाइन को. देन नेक्स्ट इज सॉरी नॉट लाइन को, पॉइंट जो होता है उसको क्या नहीं रहती है? लेंथ नहीं रहती है, ब्रीथ नहीं रहती है और थिकनेस नहीं रहती है. देन नेक्स्ट इज द लाइन. अ लाइन इज द स्ट्रेट. इट हैज़ अ नो थिकनेस. It has a neither or beginning nor an end. A and B are the 2 points on the line. The line is denoted by, this is the sign of the line, line AB. This is the line AB. Line not have any beginning point and ending point. line को beginning point भी नहीं रहता है, ending point भी नहीं रहता है. So this is the line AB. Then line segment. Line segment have a end point और beginning point. लाइन सेगमेंट को एंड पॉइंट भी रहता है और बिगनिंग पॉइंट भी रहता है. लिखते हैं एक्स वाई. ठीक है, एक्स वाई को ये एक्स जो है हमारा बिगनिंग पॉइंट है और वाई हमारा एंडिंग पॉइंट है. और वो देखो ये दोनों डॉट से हमें इंडिकेट किया. तो लाइन सेगमेंट को बिगनिंग पॉइंट भी रहता है, एंडिंग पॉइंट को भी. और दिस इज द साइन ऑफ द लाइन सेगमेंट. सो हाउ टू रीड लाइन सेगमेंट एक्स वाई. देन रे. रे को क्या रहता है? बिगनिंग पॉइंट रहता है, लेकिन रे को एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है. सो दिस इज द रे ए बी एंड दिस इज द साइन ऑफ द रे ए बी. देन नाउ लुक एट हियर. हियर 2 इज द लाइन सेगमेंट. ये 2 लाइन सेगमेंट है ए बी एंड पी क्यू. ये कहाँ मिल रही है? आर पे मिल रही है. उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट. एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लाइन्स है एम एन एंड एक्स वाई. ये कहाँ पे मिल रहे हैं? पॉइंट ओ पे. तो उसको क्या बोलेंगे हम? लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन. सो दिस इज द सिंपल concept in geometry. Now then after we had learned the measuring the line segment. So how to measuring line segment and how to draw line segment? By using the ruler. By using the ruler we will draw the line segment and measuring the line segment. So how to measuring the line segment? This is the ruler. We are start measuring from the 0 position. फ्रॉम द 0 पोजिशन. यहाँ पे देखो पी और क्यू लाइन है और इसको काउंट करना कहाँ से स्टार्ट किया है? 0 पे. और एंड कहाँ पे हो रहा है? 7. मतलब हमारी पी क्यू लाइन कितनी है? वो है हमारी कितने सेंटीमीटर की है? 7 सेंटीमीटर की होती है. ठीक है, और ये 0 के बाद आपको ये 1 1 छोटी छोटी लाइन दिखती है, वो होती है मिलीमीटर्स की रहती है. ठीक है, 10 मिलीमीटर्स मतलब होता है 1 सेंटीमीटर. 10 मिलीमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ये जो 10 लाइन है उसको मिला के हमारा 1 सेंटीमीटर बनता है. सो दिस इज द लाइन सेगमेंट. देन आफ्टर वी हैड लर्न द पैटर्न. सो पैटर्न के वजह से क्या होता है? यू हैव लर्न द प्रीवियस क्लास दैट रिपीटेड शेप मेक अ पैटर्न. पैटर्न मेक थिंग्स लुक ब्यूटीफुल. पैटर्न्स के वजह से जो भी थिंग्स है वो कैसे दिखते हैं? ब्यूटीफुल. कहाँ कहाँ दिखते हैं आपको? टाइल्स पे दिखते हैं पैटर्न्स, क्लॉथ पे दिखती है, देन फ्लावर पे दिखते हैं, उसके बाद एनिमल पे दिखता है और उसके बाद लीफ पे दिखता है, वॉल पे दिखता है. तो उसके वजह से क्या होता है? हमारी बेडशीट रहते हैं, कर्टन रहते हैं, अलग अलग बहुत सारी थिंग है, वहाँ पे क्या बनता है? पैटर्न्स बनता है. और पैटर्न्स के वजह से क्या होता है? हमारी कुछ भी थिंग्स है वो कैसी दिखती है? ब्यूटीफुल दिखती है. ठीक है, सो नाउ लुक एट हियर. ये मेरी क्वेश्चन है. यहाँ पे देखो एक पैटर्न बन गया है. ठीक है, तो इस पैटर्न के वजह से क्या होता है? ये जो हमारे बेडशीट है, कुशन है,
कुछ भी है, उसको क्या होता है, डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे देखो पैटर्न के वजह से एक डिज़ाइन फॉर्म हो गई, तो उसके वजह से क्या होते हैं, हमारी कुछ भी थिंग्स है वो कैसी दिखती है, ब्यूटीफुल दिखती है। सो दिस इज द पैटर्न्स. So this is pattern. Some patterns here, look at here. Okay, the shapes, that some shape are increasing, some is the changing the direction and तो ये है शेप वाला पैटर्न. कुछ पैटर्न्स रहते हैं नंबर के, ठीक है. सो नंबर में चेंज होता है. जैसे यहाँ पे 1 एग्जांपल लुक एट है, 1 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 है. तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक नंबर में क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है. अगर 1 में हम 2 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 में 2 ऐड करते हैं तो 5 में 2 ऐड करते हैं तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 मिल जाएगा, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा. तो ऐसे हमारा नंबर बढ़ता जाएगा. तो ये नंबर पैटर्न से, लाइक दैट नंबर्स पैटर्न्स आल्सो प्रेजेंट. देन आफ्टर वी हैड लर्न द टाइलिंग. ठीक है, टाइलिंग में कौन से शेप यूज़ किया है. तो ये है स्क्वायर है, उसके बाद ट्रायंगल है, देन पॉलीगॉन है. ऐसे लॉट ऑफ टाइप्स के क्या होते हैं, शेप यूज़ होते हैं. किस में, टाइलिंग में यूज़ होता है. ठीक है, सो दिस इज द टाइलिंग. सो दिस आवर लेसन इज finish. Okay, which lesson? Lesson number 4. Now look at here, mathematic A, and I hope all of you nicely understood lesson. So now look at here, mathematics A for concept and calculation skill. Now look at here, question number 1. Name the shapes describe. ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है शेप्स के, तो उसके नाम लिखना है. 2 फ्लैट फेस, कितने फ्लैट फेस है, 2 फ्लैट फेस है. एंड 1 कर्व फेस, एंड 1 कर्व फेस है. 2 कर्व एजेस, उसको कितने एजेस है, 2 कर्व एजेस है. कितने एजेस है, 2 कर्व्स है. एंड नो कॉर्नर, नो कॉर्नर. तो ये कौन सा शेप हो सकता है जिसको क्या है, 2 फ्लैट फेस है, ये ऊपर और नीचे, और बीच में एक कर्व फेसेस है, उसको 2 एजेस कर्व वाले हैं, और उसको क्या नहीं है, एक भी कॉर्नर नहीं है. तो ये कौन सा शेप हो सकता है, सिलेंडर. कौन सा शेप हो सकता है, सिलेंडर. नाउ लुक एट हियर, 3 स्ट्रेट साइड, कितने साइड है, 3 स्ट्रेट साइड है. नो कर्व साइड, उसको एक भी कर्व साइड नहीं, और उसको 3 कॉर्नर है. तो 3 साइड किसको रहते हैं, ट्रायंगल को. इसको कैसे, 3 स्ट्रेट साइड है, इसको क्या है, 3 कॉर्नर है. इसको कहीं पे कर्व वाला साइड दिख रहा है क्या, नहीं. तो ये हमारा क्या आएगा, ट्रायंगल. 3 स्ट्रेट साइड है, उसको नो कर्व साइड, इसको एक भी कर्व साइड नहीं, और उसको 3 कॉर्नर है, तो ये आता है ट्रायंगल. 1 कर्व फेस, इसको क्या है, 1 कर्व फेस है. क्या है, 1 कर्व फेस है. नो फ्लैट फेस, इसको एक भी फ्लैट फेस नहीं है, और इसको नो कॉर्नर. तो क्या आता है, स्पीयर आता है. स्पीयर भी आता है और सर्कल भी आता है. ठीक है, स्पीयर को क्या नहीं रहता है, एक भी फ्लैट फेस नहीं रहता है, उसको एक कर्व फेस आता है, और उसको क्या आता है, एजेस भी नहीं आते, कॉर्नर भी नहीं आता है. तो स्पीयर भी आता है, सर्कल भी आता है. देन लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर डी. 6 फ्लैट फेस, इसको कितने फेस है, 6 फ्लैट फेस है. 12 स्ट्रेट एजेस है, कितने एजेस है, 12 स्ट्रेट एजेस है. और इसको क्या है, 8 कॉर्नर है. कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है. तो ये किसको रहता है, क्यूब एंड क्यूबाइड को. लुक एट हियर, ये हमारा क्यूब हो गया. सो क्यूब को क्या हो गया, ये ऊपर नीचे दोनों साइड में, और ये कितने फेस हो गए, 6 फेसेस हो गए. और उसके बाद इसको कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस. तो 1 2 3 4 हो गया. उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एजेस हो गए, 12 एजेस हो गए. और उसको 8 कॉर्नर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो गया. लाइक दैट ये हमारा, सपोज हमने क्यूबॉइड ड्रॉ किया है. इसको भी सेम रहता है, उसको भी क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं.
देन 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर होता है, तो किसको होता है, क्यूब एंड क्यूबाइड को। देन नाउ लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 2, नेम दिस ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। इट हैज़ अ नो पोजिशन बट इट हैज़ अ पोजिशन, इसको क्या है, पोजिशन है, बट नो लेंथ, नो ब्रीथ एंड नो थिकनेस। इसको पोजीशन तो है लेकिन इसको लेंथ नहीं है, ब्रीथ नहीं है, थिकनेस नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट। पॉइंट को क्या नहीं रहती है, लेंथ नहीं रहती है, ब्रीथ भी नहीं रहती है और थिकनेस भी नहीं रहती, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट। ये देखो पॉइंट, ओके। देन इट हैज़ अ बिगनिंग बट नो एंड, बिगनिंग तो है लेकिन उसको एंड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। रे को बिगनिंग पॉइंट तो रहता है लेकिन उसको एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है, तो दिस इज द रे। देन क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ द 7 सेंटीमीटर यूजिंग द स्केल। स्केल को यूज़ करके हमें कितनी सेंटीमीटर की लाइन निकालनी है, हमें 7 सेंटीमीटर की लाइन निकालनी है। तो ये स्केल है, ठीक है, आपको ये ड्रा करनी है, स्केल लेना है। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और फिर हम कहाँ तक लेके जाते हैं, 7 तक लेके जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे आपको क्या रोलर का यूज़ करके आपको लाइन ड्रॉ करना है। ये कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ठीक है। देन मेजरिंग द लेंथ ऑफ दिस एरो यूजिंग द स्केल। एरो तक हमें लाइन को मेजर करना है, वो कितना आता है, तो लुक एट हियर। एरो तक हमने स्केल को काउंट किया तो वो कितना आ गया है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर की स्केल है। देन लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द मिसिंग शेप द कंप्लीट द पैटर्न्स। यहाँ पे हमें पैटर्न को कंप्लीट करना है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे एक बिग स्क्वायर है और उसके अंदर एक छोटा वाला स्क्वायर है, वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। सो नाउ लुक एट हियर, येलो कलर, तो इसमें सबसे पहले एक तो बड़ा येलो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सब में बड़ा वाला स्क्वायर कॉमन है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे क्या है, जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ भी कहाँ पे आएगा, नीचे आ गया और फिर से ऊपर आ गया। तो यहाँ पे ग्रीन कलर आएगा और यहाँ पे येलो कलर आएगा, ठीक है। तो मेरे पास कलर नहीं है तो मैं कलर फिल नहीं कर रही हूँ, आपको कलर फिल करना है। यहाँ पे ग्रीन कलर आएगा, यहाँ पे येलो कलर आएगा। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे सर्कल है बड़ा वाला रेड कलर का, भी उसके बाद छोटा वाला सर्कल है वो है ऑरेंज कलर का है और उसके बाद है ब्लू कलर का ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखो 3 सर्कल है, यहाँ से फिर से छोटा वाला सर्कल आ रहा है, तो छोटे वाले सर्कल के सामने कौन सा सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है और उसको कौन सा कलर है, रेड कलर है। सो लुक एट हियर, पुट द रॉन्ग ऑन द शेप दैट डज नॉट हैव अ टाइल्स। डाइल्स में कौन से शेप यूज़ नहीं होते हैं, ट्रायंगल तो यूज़ होता है, स्क्वायर भी यूज़ होता है और पॉलीगॉन भी यूज़ होता है। तो कौन सा शेप यूज़ नहीं होता है, सर्कल वाला शेप जो है वो टाइल्स भी यूज़ नहीं होता है। सो दिस इज द रॉन्ग। सो दिस इज मैथमेटिक ए। नाउ लुक एट हियर मैथमेटिक बी। यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक बी में विच इज द प्लेन फिगर विल यू ड्रॉ ऑन द शीट ऑफ द पेपर टू शो द एक्स। अगर हमें पेपर पे अगर हमने एक का अगर हमने ड्रॉ किया तो वो किसके तरह दिखता है, ओवेल की तरह दिखता है। तो फर्स्ट का आंसर आता है सी, ओवेल। एवरी फेसेस ऑफ द क्यूब इज, जो हमारा क्यूब होता है उसके सभी फेसेस कैसे रहते हैं, स्क्वायर रहते हैं। तो सेकंड का आंसर आता है ए। विच सॉलिड शेप हैज़ अ 2 प्लेन फेसेस और 1 कर्व फेस। कौन सा सॉलिड शेप है उसको 2 प्लेन फेसेस रहते हैं और 1 कर्व फेसेस होता है, तो वो होता है सिलेंडर। तो थर्ड का आंसर आता है डी। यू हैव अ क्यूबाइड, विच ऑफ दिस कैन यू मेजरिंग यूजिंग द स्केल। अगर हमें क्यूबाइड है तो उसको हम उसमें से क्या क्या ड्रॉ किस किस को लेंथ मतलब हम मेजर करेंगे, लेंथ भी मेजर करेंगे,
हाइट भी लेजर करेंगे और उसकी ब्रीथ, तो इसमें आता है ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर आता है डी. सो दिस इज द MCQs 4 numbers. Now look at here question number 5. How many lines can you draw passing through both P and Q? Now look at here which word coming here, lines. Okay, so यहाँ पे P और Q 2 पॉइंट्स है, तो उसमें से हमें लाइंस निकालनी है. तो कितने लाइंस उसमें से ड्रॉ हो सकती है. अगर हम P और Q में से लाइन निकालने, तो लाइन मतलब क्या होता है, लाइन नॉट हैव अ बिगनिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें से, तो बोथ में और दोनों में से भी लाइन जानी चाहिए. तो इसमें से क्या होगा, 1 लाइन ही जाएगी. और P और Q में कितनी लाइन जाएगी, 1 लाइन जाएगी ओनली, क्योंकि इसमें से और एक लाइन नहीं जाएगी, ओनली 1 लाइन जाएगी, क्योंकि हमें दोनों भी मतलब P और Q दोनों में से भी लाइन पास होनी चाहिए. ठीक है. एंड लाइन नॉट हैव अ बिगनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, मतलब ये P से यहाँ जा रही है और Q से यहाँ जा रही है. नाउ लुक एट इट. हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू पॉइंट X? ये क्या है, X वाला पॉइंट है, उसमें से ये बोल रहे हैं कि लाइन सेगमेंट X में से कितने लाइन सेगमेंट पास हो सकते हैं. तो एज मेनी एज यू वांट, इसमें से बहुत सारे हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से हम बहुत सारे लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसमें से मेनी क्या हो गए, लाइंस हमें जितने चाहिए उतने हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. Now look at it. How many line segment passing through any 2 points at the times you can draw through points A B C D. Try out. यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है A B C D. उसमें से हमें क्या निकालना है, लाइन सेगमेंट निकालना है. ठीक है. और कोई भी 2 पॉइंट में से हमें लाइन सेगमेंट पास होना चाहिए. तो कितनी होंगी, लुक एट हियर. हम A और C में से लाइन सेगमेंट निकाल सकते हैं. लाइन सेगमेंट को क्या रहती है, बिगनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट रह सकता है. तो ये AC निकाल सकते हैं, AB भी निकाल सकते हैं, BD भी निकाल सकते हैं और CD भी निकाल सकते हैं. ठीक है. और यहाँ से AD तक, यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं और BC तक एक लाइन सेगमेंट पास कर सकते हैं. तो इसमें से कितने लाइन सेगमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6. कितने लाइन्स निकाल सकते हैं हम, 6 लाइन सेगमेंट निकाल सकते हैं. कितने, 6 लाइन सेगमेंट निकाल सकते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लुक एट हियर फन एक्टिविटी. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. और ये आपको प्रोजेक्ट है. ठीक है. तो ये आपको क्या करना है, आपको बनाना है और मुझे सेंड करना है मेरे नंबर पे. सो लुक एट हियर. Have you seen the picture of snowfall? You can make your own snowflake design. ठीक है. स्नोफॉल की डिज़ाइन आप बना सकते हैं. तो आपको क्या करना है, टेक अ रेक्टेंगल पेपर ऑफ द पीस ऑफ द पेपर. आपको एक रेक्टेंगल पेपर लेना है. ठीक है. फोल्ड इट द 4 टाइम्स. उसको 4 टाइम्स फोल्ड करना है. मतलब ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, इसको हमें 4 टाइम्स फोल्ड करना है. उसके बाद मेक अ डिज़ाइन बाय कटिंग द ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल अलोंग द एजेस. उसको क्या करना है, हमें मतलब 4 को हमने 4 साइड को 1 साइड में कन्वर्ट किया और उस पर हमें पेंसिल से पिक्चर ड्रा करना है. मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसको क्या करना है, कट करना है. फिर कट करने के बाद उसको हम ओपन करेंगे तो हमें लाइक दैट क्या हो जाएगी, डिज़ाइन फॉर्म हो जाएगी. ओपन आउट द फोल्ड एंड यू कैन फाइंड द ब्यूटीफुल डिज़ाइन. क्या हो जाएगी, ब्यूटीफुल डिज़ाइन फाउंड होगी. सो द मोर नंबर्स ऑफ फोल्डर कैन यू मोर दैन द नंबर ऑफ कट प्रिटर एंड यू डिज़ाइन विल लुक. ये जो प्रीटी डिज़ाइन आपकी एक अच्छी सी डिज़ाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएंगे. तो ये आपके लिए प्रोजेक्ट है. ठीक है. आपको ये बनाना है और मुझे आपको क्या करना है, फ़ोटो सेंड करना है. सो दिस इज़ मैथमेटिक बी. नाउ लुक एट हियर. दिस इज़ पेज नंबर 64 है. 64 का ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन छोड़ रही हूँ. ये देखो सेकंड वाला, मतलब ये भी ए है. तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड से, ट्रीएंगुलर प्रिज्म से और क्यूब है.
तो हमें उसके क्या निकालना है, कितने फेसेस है, कितने एजेस है और कितने कॉर्नर्स है। सो सबसे पहले हम फेसेस देखेंगे। ये है ट्रायंगुलर पिरामिड से उसके फेसेस देखेंगे। तो इसको कितने फेसेस है, ये वाला 1 फेसेस है, ये 2 3 और ये सामने एक 1 फेसेस। तो इसको कितने फेसेस है, 4 फेसेस है। एक सामने वाला, ये पीछे 2 और ये नीचे। तो इसको कितने फेसेस है, 4 फेसेस है। देन लुक एट हियर ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसको कितने फेसेस है, 5 फेसेस है। ये इस साइड वाला 1 फेस, देन ये साइड वाला 2, पीछे एक 3 और नीचे एक 4 और सामने वाला 5। तो इसको कितने फेसेस है, 5 फेसेस है। देन क्यूब का तो ऑलरेडी पता है कितने फेसेस होते हैं, 6। 1 बैक साइड में 2, यहाँ पे 3 4 और डाउन साइड में 5 और ऊपर एक 6। तो इसके कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। देन एजेस, तो इसको कितने एजेस है वो काउंट करेंगे, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड को। ये 1 एजेस, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसको कितने एजेस है, 6 एजेस है किसको, ट्रायंगुलर पिरामिड को। देन उसके बाद ट्रायंगुलर प्रिज्म को कितने क्या है एजेस है। तो लुक एट हियर 1 2 3, ये 3 हो गए। उसके बाद ये 4 5 6 हो गए। उसके बाद ये 7 8 9, कितने एजेस है उसको, 9 एजेस है। और हमारा क्यूब को कितने एजेस है, 12 एजेस है। ये तो सबको पता ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसको कितने एजेस है, 12 एजेस है। देन उसके बाद इसके क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, देन उसके बाद क्या है, उसके कॉर्नर्स है। तो इसको कितने कॉर्नर्स है, ट्रायंगुलर पिरामिड को, ट्रायंगुलर प्रिज्म को, क्यूब को, इसको कितने कॉर्नर्स है, लुक एट हियर 1 2 3 4। इसको कितने कॉर्नर्स है, 4 कॉर्नर्स है, ठीक है। इसको कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6, कितने कॉर्नर्स है इसको, 6 कॉर्नर है। और हमारा क्यूब को कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So this is the sum diagram, triangular pyramids, then triangular prisms and cube. This is page number 64. ये वाला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था. So this is page number 63. This is the homework for you. So I hope all of you nicely understood our today's topic. Thank you and have a nice day.